So class 7 students, let us start with worksheet number 2, and I've only received the homework of 4 students via email. The names I'll be telling you in the next video. For now I'm starting with first question of worksheet number 2. Question number 1 is find the reciprocals of the following. The first one is 12 raised to the power 5. Now children, as we all know, reciprocal means the denominator will become the numerator and the numerator will become the denominator. Now here, if I find the reciprocal, I would say 1 upon 12 raised to the power 5. 1 के अपॉन में भी हमने 5 रखा है बिकॉज 1 के पावर में कोई भी नंबर होगा इट विल बी इक्वल टू 1. So that can be written as 12 raised to the power minus 5. Why? Because I have already told you that if a is raised to the power of any negative number, then the answer is 1 upon a. Or you can simply say a raised to the power minus n is equal to 1 upon a raised to the power n. So this is the identity being used here. I come to the second part of the question. It is minus 9 raised to the power of 4. So if I find the reciprocal, you have to write it properly. Reciprocal is 1 upon minus 9 raised to the power 4. So that is minus 1 upon 9 क्योंकि denominator can never be negative. So that is equal to minus 9 raised to the power of minus 4. मतलब what do you notice कि अगर पॉजिटिव पावर को हम सिंपली नेगेटिव पावर में लिख दें तो रेसिप्रोकल हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. आई एम डूइंग 2 upon 7 raised to the power of 3. Now to find its reciprocal, I write it 7 upon 2 raised to the power 3, or this can also be written as 2 upon 7 raised to the power minus 3. मीन्स यही नंबर लिख के सिर्फ पावर को क्या कर दें हम नेगेटिव. ठीक है. सो योर होमवर्क is worksheet 2. Also students, I would like to tell you about worksheet number 3. Let us start with worksheet number 3. We have which of the followings are true. First one, 3 upon 4 raised to the power of 3 into minus 3 upon 4 raised to the power of 3 is equal to minus 3 upon 4 raised to the power of 6. अब देखो बीच में तो इंटू का साइन है लेकिन बेसिस सेम नहीं है. इसका बेस है 3 अपॉन 4 और इसका बेस है माइनस 3 अपॉन 4. तो हम पावर्स को कभी भी प्लस नहीं कर सकते. सो आई से दिस इज फॉल्स. Coming to the second part. The second part of the question is 4 upon 7 raised to the power 5 into 4 upon 7 raised to the power 3 is equal to 4 upon 7 raised to the power 8. Now here the base, इसका बेस है 4 upon 7, इसका बेस है 4 upon 7 और बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई. तो ये सब कोर्स हम पावर्स को प्लस कर सकते हैं. So 4 upon 7 raised to the power 5 plus 3. That is 4 upon 7 raised to the power 8. So of course it is true. ठीक है. Now coming to the third part. We'll be doing the third part soon. The third part of the question is minus 1 upon 2 raised to the power 4. Now
नाउ इट इज अ डिवाइड क्वेश्चन. Divided by minus 1 upon 2 raised to the power 3 is equal to minus 1 upon 2 only. मतलब अकेला minus 1 upon 2 है, मीन्स इसके पावर में क्या है 1. Now we know that base here is same, base here is same. बीच में क्या साइन है डिवाइड का, तो पावर्स को क्या करेंगे माइनस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस प्रॉपर्टी. सो नाउ क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2, बेस को तो कुछ भी नहीं होना, रेज टू द पावर 1. सो अगेन इट इज ट्रू, राइट. अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट. Fourth part is 6 upon 7 raised to the power 6 divided by 6 upon 7 raised to the power 0 is equal to 6 upon 7 raised to the power 0. अब आइडेंटिटी तो यही लगेगी जो ऊपर लिखी है मैंने, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. अब अगर कंपेयर करूं तो ये बन जाएगा 6 अपॉन 7 रेज टू दी पावर 6 माइनस 0. अब 6 माइनस 0 क्या होता है 6 होता है. सो दिस इज 6 अपॉन 7 रेज टू दी पावर 6. लेकिन इन्होंने क्या दिया इज इक्वल टू रेज टू दी पावर 0. हमारा क्या आ रहा है रेज टू दी पावर 6. तो ये आंसर क्या है, दिस इज फॉल्स. आ गया समझ. अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है बस हमने. अगर हमें आइडेंटिटी आती है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. सो दैट इज माइनस 2 अपॉन 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर डैश. ठीक है. अब इसके रेज टू दी पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके रेज टू दी पावर में क्या है 1. बेस यहाँ पे भी माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ पे भी माइनस 2 अपॉन 3, और बीच में क्या साइन इनटू. तो आंसर में क्या होना चाहिए, दोनों पावर्स को प्लस हो जाना चाहिए, यानी कि 1 प्लस 3. तो आंसर क्या बनेगा माइनस 2 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 4. क्या किया, बेसिस सेम थे, बीच में इनटू का साइन था, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया. ठीक. अगला सेकेंड पार्ट 4 अपॉन 5 रेज टू दी पावर डैश इंटू 4 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 11. अब बड़ा ध्यान से देखें, बीच में क्या है इनटू, तो पावर्स क्या होने चाहिए प्लस. इसको मैं क्या सपोज कर लेती हूँ x, तो मेरी पावर्स प्लस होनी चाहिए, यानी कि x और 9 प्लस होके क्या बनना चाहिए 11. तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 2. नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट, माइनस 3 अपॉन 7 raised to the power 15 divided by minus 3 upon 7 raised to the power dash is equal to minus 3 upon 7 और raised to the power कुछ भी नहीं, मतलब raised to the power 1. अब बेटा अगेन डैश की जगह हम क्या लिखेंगे x. अब सोचने वाली बात ये है कि बीच में क्या साइन है डिवाइड, यानी कि पावर्स को क्या करना पड़ेगा माइनस. सो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. 15 ये 1 इधर ले आओ, माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स उधर. सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14. नाउ coming to the fourth part of the question.
The fourth part of the question is 2 upon 9 raised to the power 6 divided by 2 upon 9 raised to the power 0 is equal to 2 upon 9 raised to the power dash. ठीक है, so we will write it 2 upon 9, बेसिस आर सेम, बीच में डिवाइड, ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? तो मतलब अगर मैं इसको x कह दूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी? 6. x की वैल्यू क्या आएगी? 6. नाउ स्टूडेंट्स हियर, सॉरी, दिस वाज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो योर फोर्थ एंड योर सिक्स्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क. Fourth homework, fourth and sixth part of question number 2. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इजी लग रहा है ना? नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3. There are only 5 questions, children, in this exercise, so let us do question number 3. Let us see what we have in question number 3. Simplify and express the result in the exponential form. अभी समझाती हूँ इसका मतलब, पहले हम क्वेश्चन देख लें. -3 upon 7 raised to the power 3 into -3 upon 7 raised to the power 4. सबसे पहला तो है सिंप्लीफाई, मतलब जो आइडेंटिटी लग रही है वो आइडेंटिटी लगा दो. सो लेट अस डू. -3 upon 7, बेस तो सेम मुझे दिख रहा है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई. तो पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर दिया जी. -3 upon 7 रेज़ टू दी पावर 7. उसने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ दो, मतलब इस ब्रैकेट को नहीं खोलना, बेस और एक्सपोनेंट आना चाहिए. तो ये हमारा क्या बन गया? आंसर. इजी था ना? अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. सेकेंड पार्ट है 11 upon 12 रेज़ टू दी पावर 15 इंटू 11 upon 12 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 11 upon 12 रेज़ टू दी पावर 10. अब भाई सभी में बेस इक्वल है. 11 upon 12, 11 upon 12, 11 upon 12, we are getting the same base. So what we will be doing, 11 upon 12 is common, and raised to the power I'll get 15 plus 5 plus 10. Why? Because there is a multiply sign. So powers को क्या करेंगे? Plus. So I'll get 11 upon 12 raised to the power 15 plus 5 is 20, 20 plus 10 is 30. So this is the required answer. Clear? Now coming to your third part. The third part is -9 upon 11 raised to the power 9 divided by -9 upon 11 raised to the power 7. अब सबसे पहले क्या देखेंगे? We'll look for the bases. Base here is -9 upon 11, here is -9 upon 11, means base same. बीच में क्या साइन है? डिवाइड. तो पावर्स को क्या करेंगे? माइनस. So what will I write? -9 upon 11 raised to the power 9 minus 7. So this is -9 upon 11 raised to the power 2. हो गया. Easy. Now your fourth part and fifth part both are homework. ठीक है. Now come to question number 4. Children, I am giving you homework doesn't mean कि आपने बिल्कुल अपने आप ही करना है. If you are having any problem, you can contact me, बेटा.
चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज 5/7 रेज टू दी पावर 4. अभी बताती हूँ क्वेश्चन क्या है. स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा ही है, थोड़ा सा एक स्टेप और है. क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन रैशनल नंबर. मतलब पिछली बार एक्सपोनेंट में आते ही हमने छोड़ दिया था, इस बार इसको आगे सॉल्व करना है बस. ठीक, करते हैं. बीच में डिवाइड है, पावर्स माइनस हो जाएंगी. सो 5/7 रेज टू दी पावर 4 - 2, दैट इज 5/7 रेज टू दी पावर 2. ये तो हो गया पिछले क्वेश्चन जितना. अब हमने आगे क्या करना है, वी हैव टू look for this whole square, so that means 5/7 into 5/7, so answer will be 25/49. What answer I will get? I will get the answer as 25/49. Easy na? Now let us do the second part also for the question. The second part for the question is -2/3 whole square into -2/3 whole cube, राइट. सो क्या होगा, बेसिस सेम है, इनटू का साइन है, पावर्स को क्या करेंगे, शाबाश, प्लस 2 + 3. सो दैट इज -2/3 रेज टू दी पावर 5. अब यहाँ तक नहीं छोड़ना, रेशनल नंबर चाहिए. अब 5 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स. -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3. 5 टाइम्स हो गया. 1 2 3 4 5. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. अब बात आएगी प्लस माइनस की. 1 2 3 4 5 है. नेगेटिव में हमेशा, ऑड नंबर्स में हमेशा नेगेटिव साइन जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है ना. अदरवाइज भी अगर आप देखें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस. अब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243. मेरे को डायरेक्टली आता था, मैंने लिख दिया. आप इसका आंसर मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं. रादर आई वुड सजेस्ट आप मल्टीप्लाई करके ही फाइंड करें, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है. अच्छा, अब मैं आपको करवाऊंगी इसका 5th पार्ट. 3rd and 4th अगेन होमवर्क. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4th. मैं क्यों दे रही हूँ आपको करने के लिए, मैं खुद भी कर सकती हूँ, बट आई वॉन्ट कि आप अपनी प्रैक्टिस करो और फिर आपको डाउट्स आए तो आप मुझसे पूछो. ठीक है बेटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है खुद भी सॉल्व करने में, बट जब आप मुझसे पूछते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. -1/10 रेज टू दी पावर 4 इंटू -1/10 रेज टू दी पावर 2. Now bases are same, we will add the powers. -1/10 raised to the power 4 plus 2, that is equal to -1/10 raised to the power 6. So that is equal to -1/10 into -1/10 into 6 times लिख देना है. हमने 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स. अब बेटा नेगेटिव को देखना, माइनस 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 6 टाइम्स आना ना, तो ये प्लस बन जाएगा. और 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 1 ही आना है. अपॉन में 10 के साथ 6 zeros आ जाएंगे. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. इजी, बहुत इजी वर्कशीट है. ये चैप्टर इन ऑल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी. थ्री अपॉन 4 होल क्यूब
into 2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इवैल्यूएट। बेटा बहुत सारे तरीके हैं करने के। सबसे पहले तो देखना होता है आइडेंटिटी कोई बन रही है। आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ देखूँ, इधर बेस है 3/4 और इधर बेस है 2/3, मीन्स आइडेंटिटी नहीं बन रही है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं बनने का मतलब है कि अब हमें कुछ और करना है। कुछ और क्या करना है, बड़ा आसान तरीका आपको बता दूंगी, वही करना। अब ये है 3/4 रेज़ टू दी पावर 3, मतलब 3/4 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। लिख दिया। अगला नंबर इंटू है तो मैंने भी इंटू डाल दिया। अगर डिवाइड होता तो हम डिवाइड डालते, क्योंकि यहाँ इंटू है तो मैं इंटू डाल रही हूँ। यहाँ पे 2/3 स्क्वायर है तो इसको मैंने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 और ये कैंसिल हुए 2, यहाँ पे कैंसिल हुआ ये, तो ये आ गया 3/16। आंसर डन हो गया क्वेश्चन। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ईजी था ना। नाउ देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। कोई नहीं, हम करेंगे, चारों करेंगे हम। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, it is 1/3 raised to the power 6, square bracket starts, this is the second part, 1/3 raised to the power 6 divided by 1/3 raised to the power 5, square bracket close, divided by 1/3। ओके, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व होती है, सबसे पहले तो मैंने ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। सो बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो आई गेट 1/3 रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 5, स्क्वायर ब्रैकेट वापस लगा दो, डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, सो दिस इज 1/3 रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 5 इज 1 डिवाइडेड बाय 1/3। सो मेरा आंसर कितना हो गया, 1/3। अब इस वाले 1/3 की पावर क्या है, 1, इस वाले की भी क्या है, 1, 1 माइनस 1 क्या बन गए, 0। ऊपर लिख रही हूँ मैं, ये बन गए 1/3 रेज़ टू दी पावर 0। और उस दिन आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी कि एनी नंबर रेज़ टू दी पावर 0 इज 1, तो 1/3 की पावर में भी 0 आ गया, तब भी मेरा आंसर क्या बनेगा, 1। ये इसकी आइडेंटिटी यूज्ड है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर में, बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर में 0 आ जाए तो उसको 1 बना देता है। नेक्स्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 8। Now bases are same in the bracket and we have a multiply sign, so we will be adding up the powers. I will get 2 raised to the power 4 plus 5 divided by 2 raised to the power 8. So that is 2 raised to the power 9 divided by 2 raised to the power 8. That is 2 raised to the power 9 minus 8. So that is 2 raised to the power 1. So the answer I get is 2. ठीक है, now coming to the fourth part. The fourth part says, ये रब कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7 होल स्क्वायर। ठीक है, सो हियर व्हाट डू आई हैव। अब बेटा जी यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, इसलिए पावर्स को हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खोलनी पड़ेंगी। 4 का स्क्वायर हमने स्क्वायर्स करें, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 1/7 स्क्वायर। इसको ऐसे छोड़ते हैं, देखते हैं बाद में क्या होगा। नाउ 16 माइनस 9 विल गिव मी 7 डिवाइडेड बाय 1/7 इंटू 1/7। So that is equal to 7 divided by 1/49. So that is equal to, I am writing on the top, 7 into 49. So that is equal to 343, which is your required
answer. So children, you have already seen your homework in between and it has to be submit by 12 noon tomorrow. Alright? So do your work. Thank you.